Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on 2331-4444 or 2371-7106 and 2371-7117. And yes, if you're calling from outside Delhi, please don't forget to add a prefix of 011 before these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे ताजा आर्थिक समाचार। प्रत्येक सोमवार की तरह आपके सवाल भी आज हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। लालिमा ने अभी नंबर आपको बताए, नंबर एक बार फिर दोहराए देते हैं। 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता जो हैं 011 जरूर लगाएं फोन नंबर से पहले। और प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Well, the benchmark equity indices climbed for the third consecutive session. Sensex ends near 39,000 mark. Nifty reclaimed 11,500 level. The rupee depreciates 16 paise against the US dollar. And gold slips 389 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज। सेंसेक्स 39,000 के नजदीक पहुंचकर हुआ बंद। निफ्टी ने 11,500 के स्तर को दोबारा छुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे हुआ कमजोर और दिल्ली सराफा बाजार में प्रति 10 ग्राम सोने के दाम 389 रुपए गिरे। और आज लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में लालिमा शेयर बाजारों में बढ़त का रुख देखा जा रहा है। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच आईटी और बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त मुनाफे से प्रमुख शेयर बाजारों में आज लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बढ़त का रुख रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.71% की वृद्धि से 277 अंकों पर 38,974 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.76% बढ़कर 86 अंक ऊपर 11,503 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप 0.18% नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.38% की बढ़त दर्ज हुई। Equity benchmarks today gained for the third consecutive session, buoyed by robust gains in IT and banking stocks amid a broad up move in global markets. Starting off on a high note, the 30-share BSE Sensex zoomed to settle at 38,974, up 277 points or 0.71%. Likewise, the broader NSE Nifty rose 86 points or 0.76% to close at 11,503. The broader market at BSE closed divergently. Mid-cap fell 0.18%. Small cap appreciated 0.38%. TCS was the top performer on the Sensex chart, rallying 7.3%. In the process, the IT giant became the second Indian firm after Reliance Industries to cross the 10 lakh crore rupee market valuation mark. Other prominent gainers include Tata Steel, Sun Pharma, Infosys, Tech Mahindra, IndusInd Bank, HCL Tech, ICICI Bank, HUL, Kotak Bank and HDFC Bank, spurting up to 4.7%. On the other hand, Bajaj Finserv, Bajaj Finance,
Bharti Airtel, Bajaj Auto, Power Grid and ITC were among the major laggards, shedding as much as 2.7%. Sectorally, the BSE IT index rose 4.1%, followed by tech, metal, healthcare and BankX. Analysts said with the global markets focus turning to US President Donald Trump's COVID-19 treatment, reports of an improvement in his health boosted investor sentiment. और कार्यक्रम के सबसे पहले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं सतीश कुमार जी। सतीश, कार्यक्रम में स्वागत। क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी विशाल जी, मेरा जो 2 सवाल है। पहला तो एक ये कि अभी ना 1 तारीख से आरबीआई ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नए रूल्स जारी किए थे, जिसमें ना आप कि भाई अपने एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड की विड्रॉ की लिमिट तय कर सकते थे। लेकिन आज मैंने बैंक से बात की कि भाई मेरे एटीएम कार्ड की आप लिमिट तय कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरा सवाल ये कि हमारे जो देश के बैंक है उसमें जो भी फ्रॉड होते हैं उसमें जो बैंक के कार्यकर्ता वो उनको अरेस्ट किया जाता है। तो मैडम से मेरा ये सवाल है कि मैडम ये जैसे इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बैंकों का कार्य करने में पूरी तरह सक्षम है, तो ये ह्यूमन वर्कर की जगह क्यों ना उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ पे बैठाने में सरकार देरी क्यों लगा रही है इतनी? तो मैडम ये बताइएगा। धन्यवाद जी। Yes, Dr. Yamini. Hello. Yes, Dr. Yamini. यस, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आरबीआई किसी भी चीज के बारे में जारी करता है तो वो सर्कुलर इशू होता है और उसके बाद वो बैंक्स तक जाता है, तो उसमें कभी कभार समय सीमा में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसलिए हो सकता है कुछ बैंक्स के पास जानकारी ना हो, जिसकी वजह से वो एक चीज को इम्प्लीमेंट ना कर पाए। पर अगर आरबीआई ने कोई पर्टिकुलर सर्कुलर जारी किया है तो वो सारे बैंक्स तक पहुंच जाना चाहिए और उन्हें उनके लिए वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। जहां तक सवाल है कि हम ह्यूमन वर्कफोर्स क्यों एम्प्लॉय करते हैं ज्यादातर बैंकों में, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर केस बड़ा कस्टमाइज्ड होता है और बहुत सारी चीजों को देख करके जो रेगुलेशंस हैं, एलिजिबिलिटीज हैं, उनको देख करके एक ह्यूमन इवैल्यूएशन किया जा सकता है। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है या कंप्यूटराइज्ड जो सॉफ्टवेयर हैं उनका प्रोग्राम का यूज किया जाता है इवैल्यूएशन करने के लिए और बाकी चीजें रखने के लिए। ओवरऑल डिसीजन कमेटीज का भी होता है, टीम मैनेजमेंट का भी होता है जो इवैल्यूएट करती हैं डिफरेंट लोन्स। Yes, good you mentioned the AI because there is today a great conference going on artificial intelligence where our Honorable Prime Minister will address or is probably still it's happening. I do not know. We are here. That will of course play a very important role in many of these scams and solving intelligence problems. We are now joined by Ratnakar from Delhi. Ji Ratnakar, सवाल पूछिए। हेलो मैम। जी Ma'am, for a bank loan, the project report has to be prepared by a chartered accountant or the person can prepare himself also? Any project which you're applying for, you can prepare it by yourself or you can hire technical professionals who prepare the detailed project report, which is also sometimes prepared by professionals like CA or finance professionals or different industry professionals, which consultants who may help you prepare that. Dr. Yamini, today we saw that the Sensex zoomed to settle at 38,000 plus. Psychologically, anything close to, let's say, around 39 seems good. What do you have to say on that? Well, the market is volatile in terms of the positive side, primarily because there is the unlock process which is continuously going on. There have been certain positive indications through the auto sales or the overall work developments that are taking place, which are creating a positive sign in the overall economy. Also, some aspects which will affect the markets are the Supreme Court's decision with respect to the interest waiver on the during the moratorium time, as well as the US presidential election. Trump's recovery obviously has a positive impact over the investor sentiment because he is seen as one of the influential persons in the overall world. जी, मोदी नगर से फोन लाइन पर हैं अशोक कुमार जी। हेलो जी हाँ अशोक जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार जी आपको। जी नमस्कार। यामिनी जी, मेरा सवाल यह है कि आजकल कंपनियां डीलिस्ट करे जा रही हैं अपने शेयर कुछ, तो डीलिस्ट से कंपनी को क्या फायदा है और
और क्लाइंट को क्या करना चाहिए? उसके शेयर फिर बिकेंगे या नहीं बिकेंगे? जी, डीलिस्टिंग इसलिए जारी है क्योंकि कंपनीज को ऐसा लगता है कि जो उनके शेयर्स हैं वो काफी लो प्राइसेस पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेक ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो है कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करें या जो है कुछ ऐसी जगह स्ट्रैटेजिक होल्ड चला जाए जो कंपनी की मैनेजमेंट के अगेंस्ट हो। तो बहुत सारी कंपनीज इस वजह से डीलिस्ट कर रही हैं। कुछ कंपनीज इसलिए भी डीलिस्ट कर रही हैं क्योंकि वो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको इतना फुलफिल नहीं कर पाती। किसी भी व्यक्ति जो डीलिस्टेड कंपनी होती है बायबैक ऑफर करे तब उसे बेच देना चाहिए या डीलिस्टिंग से पहले उसे निकाल देना शेयर को बेहतर रहता है। अगर डीलिस्टिंग के बाद भी अपॉर्चुनिटी होती है कि जिन इन्वेस्टर्स ने उसे होल्ड कर रखा है, खासतौर पे मैनेजमेंट या प्रमोटर्स, उनको आप अपने शेयर बेच सकते हैं। Right, we're now joined by Kuldeep Singh from रेवा मध्य प्रदेश। जी कुलदीप जी, सवाल पूछिए। जी, गुड इवनिंग मैडम। जी, गुड इवनिंग जी। मेरा नाम कुलदीप, मैं शहर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल यह है कि मैंने एक लोन लिया हुआ है बैंक से, पर्सनल लोन, और थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई है कि हाई कोर्ट की तरफ से, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से, कि जो लोन पे जो ब्याज के ऊपर ब्याज है उसमें राहत मिल सकती है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार इसके लिए भी तैयार भी है, तो ये हम लोन अकाउंट होल्डर को कैसे क्या मिलेगा? डायरेक्ट ये जो पैसा सब्सिडी के तौर पे हमारे लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा या फिर पहले बैंक को आएगा उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगा? धन्यवाद। जी, जो केस है वो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो मॉनिटोरियम पीरियड पे जो आपका इंटरेस्ट आपको पे करना था उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लग रहा है, उसके वेवर की बात हो रही है, तो आपको अपने लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। पर उसके क्योंकि आपने इस मॉनिटोरियम पीरियड में जो मॉनिटोरियम दिया था उसके पीरियड में अगर आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, तो जो है वो चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। जी यामिनी, अगर आज बात करें शेयर बाजार के बारे में, तो टेक और मेटल्स शेयरों में, आईटी शेयरों में काफी तेजी देखी गई है और खासतौर पर टीसीएस के शेयरों में तो 7% से भी ज्यादा की तेजी दर्ज हुई है। तो ये जो टीसीएस या आईटी शेयर्स में जो तेजी है, ये खासतौर पर अगर हम टीसीएस की बात करें तो ये भी खबरें हैं कि बाईबैक का डिसीजन लिया है कंपनी ने शेयरों का। तो क्या ये तेजी इस वजह से ही है या कुछ और भी वजह आप देखती हैं इसके पीछे? जी देखिए, ओवरऑल आईटी सेक्टर्स और बैंकिंग सेक्टर्स एवरग्रीन सेक्टर्स रहते हैं और जब पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड हो तो वैल्यूएशंस जो है, क्योंकि वो लो लेवल पे होती हैं, एक टाइम रहता है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ कंपनीज ने जैसे इन्फॉर्म किया है कि वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स में क्या चेंजेस लाएंगे या क्या उनकी अर्निंग्स रहेंगी, उनसे भी फर्क पड़ा है। क्योंकि एक एवरग्रीन सेक्टर है और क्योंकि लोअर वैल्यूएशंस पे हैं, इसलिए ज्यादा तेजी नजर आ रही है। Alright, now we are joined by Nagendra from Delhi. जी, हेलो। हेलो जी नागेंद्र जी, सवाल पूछिए डॉक्टर यामिनी से। जी मैडम, मेरा सवाल है SSY से संबंधित है। जी पूछिए। मैंने अपने बेटे के नाम से खाता खुलवाया है यूनियन बैंक में, जिसमें हमने 1000 रुपये एक बार जमा किया है, 9000 रुपये एक बार जी, और 8000 रुपये अभी इस साल में जमा किया हूँ। तो मैडम उसमें मेरा 450 रुपये के प्लस कुछ पेनल्टी कटा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसमें? जी, आपकी कोई पेनल्टी कटनी नहीं चाहिए। आप बैंक के अधिकारी से बात करिए कि कोई भी उन्होंने अगर चार्जेस लगाए गए हैं एटीएम के या मिनिमम बैलेंस के या किसी चीज के, वो आपके रिवर्स किए जाए। अगर आपने जनधन खाता खोला है तो उसमें कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं लगने चाहिए। आप अधिकारी को लिखित में ये कंप्लेन दीजिए कि कोई भी चार्जेस उन्होंने लगाए हैं या तो वो आपको एक्सप्लेन करें या उन्हें रिवर्स करें, मतलब वापस लें। एंड नाउ yes, you're right. Yamini, we just had a query on delisting of companies. What happens if a company is delisted? What happens to the shares of the investor in that case? The investors continue to remain the shareholders of that particular company. It is only that the company is not available on the exchange for the purposes of trading. When it gets delisted, it is still available for trading because it is in the demat account and the share exists. However, you can only trade it with, let's say, you can only transfer it to people who may then be interested in outside the exchange. जी, किशोर मुंबई से फोन लाइन पर हैं। हेलो जी किशोर जी। हेलो जी हाँ। या
आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आप सवाल पूछिए। या गुड इवनिंग मैडम, मेरा नाम किशोर है, मुंबई से। आई हैव वन क्वेश्चन। आई हैव अ मॉर्गेज लोन विद अ बैंक and since there's still time left, I want to pay it off early and close the account. Can I discuss the interest with the bank for a better payment instead of paying the full interest for the so many years left behind? लॉट ऑफ बैंक्स डू अलाउ अ प्रीपेमेंट। बहुत सारे बैंक्स अलाउ करते हैं कि पहले आप पेमेंट कर दें और उसके लिए वो इंटरेस्ट वेवर्स भी दे देते हैं अगर बैंक को लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है। But if the bank does not need liquidity and you're paying off early, a lot of times banks also put a penalty on you for paying earlier than what you had taken the loan for. So you will have to see the terms of your loan and then send in a request to the official of your the particular home loan, and requesting that you would like to pay it off and suggesting that you would like a lower interest on that for a prepayment. Right. We now have online KB Thakkar from Mumbai. Hello. हेलो मैडम। जी ठक्कर जी, सवाल पूछिए। मैं क्या बताऊँ, अपने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए पेंशन बढ़ने वाला है, आपको मालूम है क्या? जी, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, श्रमिक पेंशन योजना जो है वो आपको उसकी जानकारी EPFO और LIC के ऑफिसेज में मिल जाएगी। वहाँ पे मदद केंद्र है, वहाँ पे आप जाइए और अपने लिए खाता खुलवा लीजिए। उसके लिए आपको आवश्यकता है एक जनधन योजना PM जो जनधन अकाउंट है उसकी, और अपने आधार कार्ड की। एंड नाउ वी हैव परिमल फ्रॉम मुंबई। जी परिमल जी, सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ हेलो। जी हेलो, प्लीज सवाल पूछिए अपना। ओके सर, नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ कि सर अभी जो शुगर सेक्टर का कंडीशन है, तो अभी यहाँ से शेयर प्राइस बढ़ेगा या उसका कंसोलिडेशन होगा, और टेलीकॉम सेक्टर का फ्यूचर कैसा है अभी यहाँ से? जी, ओवरऑल टेलीकॉम में एक्सपेंशन नजर आएगा क्योंकि काफी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी जो नया स्पेक्ट्रम है उसमें, और ओवरऑल क्योंकि पेनिट्रेशन मार्केट्स की बढ़ रही है तो कंटिन्यूसली देयर वुड बी एन इंक्रीज। पर क्योंकि AGR इशू की वजह से काफी उनके ऊपर बर्डन पड़ा था, इसलिए अर्निंग्स में इतनी बॉयंसी नहीं नजर आएगी टेलीकॉम सेक्टर की, और लॉसेस भी दिख सकते हैं। जी, इनका एक सवाल शुगर सेक्टर को लेकर था कि क्या कंसोलिडेट करेगा ये आगे चल के? जी, शुगर सेक्टर में कुछ कंपनियां अच्छी कर रही हैं और वहां पे आप देख सकते हैं कि एक बेटर परफॉर्मेंस रहेगी। ओवरऑल एक अच्छा सेक्टर माना जाता है जहां पे पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्निंग्स कुछ कंपनीज की काफी अच्छी है, लेकिन कुछ कंपनीज अभी लॉसेस में चल रही हैं। कंसोलिडेशन कहना अभी मुश्किल होगा, पर हाँ कुछ कंपनीज जो है एवरग्रीन रहेंगी उस सेक्टर में। और रुपए का क्या हाल है, आप बताएंगे विशाल? चलिए हम बता देते हैं। Well, the rupee today depreciated by 16 paise to close at 73 rupees and 29 paise against the US dollar due to dollar buying by banks. Meanwhile, the dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of 6 currencies, fell 0.17% to 93.68. That was about the rupee. What is your take on this, Yamini? Well, rupee, I believe, would remain more or less stable and still would appreciate primarily because there would be continuous flows. And India's recovery is on its way back. So it does show there would be some strength in the rupee as well. और अब नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों के आज के प्रदर्शन पर। एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से जल्द छुट्टी मिलने की खबरों का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ा। हांगकांग का हैंग सेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों में 1.3% की वृद्धि दर्ज हुई। जापान का निकेई 1.2% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स 0.9% बढ़त के साथ बंद हुए। चीन के शंघाई कंपोजिट में अवकाश के कारण कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान बढ़त का रुख रहा। लंदन के फुट्सी और जर्मनी के डैक्स में 0.9% का उछाल आया, जबकि फ्रांस का कैक 1% बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा। And now we are joined by Ratnakar from Mumbai. Hello. हेलो जी, सवाल पूछें रत्नाकर जी।
हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि जो बायबैक हो जाते हैं वो बायबैक कौन सी हालत में और किस लिए बायबैक स्कीम आती है कंपनी की तरफ से? और दूसरा सवाल है कि ये डिफेंस सेक्टर जो है, डिफेंस सेक्टर में आने वाले पीरियड में डिफेंस सेक्टर का शेयर्स कैसे रहेंगे, उसमें क्या बदलाव हो सकता है? जी, आपका पहला सवाल बायबैक जो होता है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि या तो उसके शेयर्स कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्रमोटर्स के स्टेक इंक्रीज करें, अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है या कोई और डिसीजन लेना है जिसमें प्रमोटर्स का इफेक्ट हो, इसलिए भी बायबैक किया जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सरप्लस कैश होता है और वो जो है उस समय अपनी पोजीशन को थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार इसे एक सिग्नल भी दिया जाता है कि मैनेजर्स जो हैं पॉजिटिव रखते हैं अपनी कंपनी की तरफ आशा, और इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि हमारी प्राइस हायर लेवल पर है देन द ट्रेडिंग लेवल। जहां तक डिफेंस सेक्टर की बात है, क्योंकि उसे ओपन किया गया है और डिफेंस सेक्टर एक अंडरवैल्यूड सेक्टर है, काफी ज्यादा ट्रेडिंग या बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग नहीं नजर आती, या ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें जो है बहुत लोग रखते नहीं है इंटरेस्ट। एक अंडरवैल्यूड सेक्टर है, पर एक अच्छा सेक्टर है जहां पे रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। And considering the fact that the Make in India or Made in India defense sector is central to it, and we see that a lot of progress is being made by DRDO and other, we are making a lot of good stuff and importing less as far as defense equipment is concerned. Does that give us a lot of hope, Yamini? Yes, it does, because there is a lot of impetus given on the indigenous working, which would help the defense sector grow indigenously. जी, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार पंकज जी। जी, मेरे 2 क्वेश्चन है जी। पहला कि अब पहले अभी हम पिछले 2 महीने से ये देख रहे थे, 2 या 3 महीने से, कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रैली चल रही थी। तो क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि ये टाइम आ गया है कि अब रैली उतनी नहीं चलेगी जितनी 2 या 3 महीने में चल रही थी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अभी हाल ही में लोकसभा में एक बिल पास हुआ जिसमें कि यदि बैंक दिवालिया हो जाता है तो जो भी उसमें डिपॉजिटर्स हैं उनका किसी भी तरह का जो पैसा डिपॉजिट है, वेदर इट इज 5 लाख और 10 लाख और वट एवर द अमाउंट, वो कहीं भी मतलब पूरा सुरक्षित रहेगा। इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए थी। जी, पहला आपका जो डिपॉजिटर से रिलेटेड है वो बता देती हूँ कि ये है कि इंश्योरेंस जो है वो पर डिपॉजिट 5 लाख रुपीज रहेगा, वो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया है। अगर आपका डिपॉजिट का अमाउंट कितना भी हो, मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस उस पर मिलेगा। कभी भी कोई बैंक बैंकरप्ट होता है या उसके पास पैसा नहीं होता अपने डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए, तो उनके एसेट्स बेचे जाते हैं या उनके एसेट्स को सिक्योरिटाइज किया जाता है ताकि डिपॉजिटर्स का पैसा दिया जा सके, या उस बैंक को मर्ज किया जाता है किसी और बैंक के साथ ताकि डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रहे। जी, इनका पहला सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रैली है वो अब थम गई है। जी, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रैली थी वो अभी थमी नहीं है, क्योंकि अभी अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है और कंटिन्यूस रिकवरी आप देखेंगे तो लोग अभी भी उसमें एक रैली रखेंगे कुछ समय तक, पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको नजर आएगी स्टॉक मार्केट्स में, और स्टॉक मार्केट्स काफी ओवरऑल वॉलेटाइल रहेंगे, मिड कैप्स में भी और लार्ज कैप्स में भी। Now we're joined by Bharat from Rewari, Haryana. Yes, Bharat. हाय, गुड इवनिंग मैडम। मेरा प्रश्न है कि जो गोल्ड रेट है वो कंटिन्यूसली थोड़ा नीचे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 5-6 महीने में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कैसा रहेगा उसमें? जी, गोल्ड एक अच्छा निवेश ऑप्शन होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। प्राइस बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि लोगों के पास निवेश के ज्यादा जरिए नहीं थे, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा जो है आशा नहीं नजर आ रही थी, और स्टॉक मार्केट्स भी एक लो लेवल पे थी, इसलिए गोल्ड में काफी ज्यादा निवेश था, तो एक हाई लेवल पे पहुंच गई थी। क्योंकि स्टॉक मार्केट्स बढ़ती नजर आ रही हैं, इकोनॉमी रिकवरी पे है, कोविड की रिकवरी रेट्स भी काफी अच्छे हैं, जबकि केसेस काफी बढ़ गए हैं, पर फिर भी क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव रिकवरीज हैं तो गोल्ड का रेट थोड़ा कम होगा क्योंकि निवेश के काफी ज्यादा साधन नजर आएंगे।
जी, बात गोल्ड की हो रही है तो लगे हाथ हम बात कर लेते हैं सोने के प्रदर्शन की भी। तो कमजोर वैश्विक रुझानों के चलते दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के दाम 389 रुपए गिर गए। 10 ग्राम सोने का मूल्य 51,192 रुपए रहा। चांदी भी 466 रुपए टूटकर 61,902 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,892 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.81 प्रति औंस पर रहे। That sounds some good news for our investors, especially with festivities and marriage season around the corner. Well, we are now connected with Kolkata and Mushtaq Ali is there with us. Hello. अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल मैम। मेरा कोलकाता में नहीं पकड़ रहा है FM गोल्ड 100.1 में, प्लीज लाइन मत काटिएगा। वो BMA नाम की वो जो ये है मेरे उसमें ये था अकाउंट था तो वो बंद हो गई है, तो हम लोग को शेयर कैसे मिलेगा या फिर पैसा मिलेगा, कानून में क्या है? और शेयर मिलेगा तो कितना मिलेगा? आप परचेज मिला सेल में, और पैसा मिलेगा तो फिर कैसे मिलेगा, ये जरा बताइएगा। या लाइन मत काटिए। अगर कोई कंपनी बंद हो रही है या लिक्विडेट हो रही है तो उसके एसेट्स बेच दिए जाते हैं, और सबसे पहले जो उसके जो लोग जिन लोगों ने उसे कर्ज दिया होता है उनको पैसा दिया जाता है, और जो बाकी बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में उनके जितने शेयर्स होते हैं उस प्रपोर्शन में उनको वापस दिया जाता है। लिक्विडेशन का ये प्रोसेस होता है, बंद होने का ये प्रोसेस होता है। अगर डीलिस्ट हो रही है, मतलब एक्सचेंज से जो है बाहर जा रही है, तो शेयर्स आप ही के पास रहेंगे और आप जब उन्हें बेचेंगे तो वो पैसा आपको मिलेगा। And now let's take a look at the oil. Well, oil prices today rose, lifted by comments from doctors for US President Donald Trump, suggesting he could be discharged from the hospital today. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $40.90 per barrel, while WTI crude prices were around $38.70 per barrel. Yamini, post-COVID, now the oil consumption has gone up, and there was a time, at one time, everybody said, well, it'll go past 80, and now we are seeing that. Oh, before that, sorry, we have Shamlal. I think let's have a question from him. जी, अलवर से श्यामलाल जी हैं, आप सवाल पूछिए। हेलो जी, श्यामलाल जी। मैडम जी हाँ, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जो डाकघर में RD अकाउंट खोला हुआ है, जिसका इंटरेस्ट रेट जिस समय 2000 अक्टूबर 2018 में था, उस समय 7.3 था। अभी मीडिया में खबर आ रही है कि 5.8 है, तो मुझे क्या रेट से मिलेगा? जी जी, इनका कौन सा अकाउंट है? RD अकाउंट है इनका, और अब कह रहे हैं कि पहले इंटरेस्ट ज्यादा था, ब्याज दर अब कम हो गई है। FD पे ब्याज दर अभी कम हुए हैं। ये रेकरिंग डिपॉजिट की बात कर रहे हैं यामिनी जी। तो इनका जो रेकरिंग डिपॉजिट है उसका जो रेट होता है वो मार्केट जो पर्टिकुलर बैंक देता है उस रेट पे निर्भर करता है, और अगर रेट्स बढ़ते हैं या घटते हैं वही रेट दिए जाते हैं नए इंटरेस्ट पे। अगर आपका एक पर्टिकुलर पीरियड तक चल रहा है तो उस तक वही इंटरेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद जब वो वापस रिन्यू होगा तो इंटरेस्ट रेट उस पीरियड में जो होगा उस समय के लिए वो लागू होगा। और वैसे भी अगर इनका रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट अगर पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस जो है हर 3 महीने पे ये वहाँ पे दरें जो हैं ब्याज की वो संशोधित की जाती हैं छोटी जमाओं पर। और यामिनी, कार्यक्रम में आप शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी और उनके सवालों के जवाब भी दिए बहुत अच्छे से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And friends, now before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark equity indices climb for the third consecutive session. Sensex ends near 39,000 mark. Nifty reclaimed 11,000 level. The rupee depreciates 16 paise against the US dollar, and gold slips 389 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. Well, that's all we have for you, friends, in this edition of Market Mantra. On behalf of myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Vishal Sharma, it's time to bid adieu. Namaskar. Namaskar. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra.